السلام علیکم ناظرین آج کی کہانی بہت ہی انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ پلیز آپ سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو مکمل طور پر سنیے گا۔ بوڑھی عورت زاروں قطار رو رہی تھی اور ہرکولس اس کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے سائیکلس پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلا تھا۔ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ اس جنگل کی جانب نکلا۔ تھک ہار کر وہ واپس پلٹنے لگا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس بیابان جنگل میں رونے کی آواز سن کر وہ رک گیا اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ گھوڑا اس جانب لے گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے گھاس پھوس کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ رونے کی آواز اسی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ ہرکولس گھوڑے سے اتر پڑا۔ گھوڑے کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر وہ جھونپڑی کی جانب بڑھا۔ جھونپڑی کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہرکولس دروازے کے قریب رک گیا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس نے دروازے کی جانب منہ کر کے آواز دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ اندر سے ایک ضعیف آواز سنائی دی اور ہرکولس سر ہلاتا ہوا جھونپڑی کا دروازہ عبور کر کے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی زیادہ بڑی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں ایک پانی کے گھڑے کے علاوہ اور کچھ تھا۔ ایک چھوٹے سے صندوق اور ایک چٹائی کے سوا کوئی دوسرا سامان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چٹائی پر ایک بے حد بوڑھی عورت جس کے سر کے بال برف کی مانند سفید تھے اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ کون ہیں بڑی اماں، اور اس بیابان جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ ہرکولس نے اس بوڑھی عورت کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور اس طرف کیسے آئے؟ بوڑھی عورت نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ہرکولس ہوں، جزیرہ کریٹ کا شاہ زیوس کا بیٹا۔ ہرکولس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اور عورت چونک پڑی۔ حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ تم ہرکولس ہو، ریاست کریٹ کے ولی عہد؟ اس کا منہ حیرت کے عالم میں کھلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرانے لگی تھی۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، یا پھر غالباً وہ ہرکولس کے لیے سر جھکائے ہوئے تھی۔ وہ جلدی ہاتھوں سے چٹائی صاف کرنے لگی۔ زہ نصیب، شہزادہ ہرکولس آئے اور میرے پاس آپ کو کہیں بٹھانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اوہ، میں کیا کروں؟ وہ انتہائی پریشان ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بڑی اماں، میں اس پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں شہزادہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی تو ہوں، اور یہ ضروری تو نہیں کہ ہر شہزادہ زر نگار اور سونے چاندی سے مرصع تخت پر ہی بیٹھے۔ میں یہیں اس چٹائی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہاں بیٹھنے سے میری شان نہیں گھٹے گی، ہرکولس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نہایت اطمینان بھرے انداز میں چٹائی پر بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت چند لمحے حیران و پریشان نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر وہ بھی بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کا قرب اور افسردگی تھی۔ بڑی اماں، کیا میں آپ کی پریشانی اور رونے کا سبب جان سکتا ہوں؟ ہرکولس نے چند لمحے توقف کے بعد بڑی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ میری پریشانی اور رونے کا سبب جان کر تم کیا کرو گے؟ ہرکولس، یہ سب میرے اپنے کرموں کا پھل ہے۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ یہ مجھے میرے لالچ کی سزا مل رہی ہے۔ مجھ سے میرے بارے میں کچھ نہ ہی پوچھ تو بہتر ہے، ورنہ تم بھی مجھ سے نفرت کھاؤ گے اور مجھے یوں ہی تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ بوڑھی عورت نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں بڑی اماں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بتلائیے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ ہرکولس نے نہایت ملائمت سے جواب دیا۔ نہیں ہرکولس، تم میرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے تمہیں اس کے متعلق بتا دیا تو تم بھی مجھے اس نحوست کا شکار
होने के लिए छोड़ जाओगे। नहीं नहीं, मैं इस मनहूस हीरे के मुतल्लिक कुछ नहीं बताऊंगी, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर जल्दी से अपने मुंह पर यूं हाथ रख लिया जैसे नादानगी से उसे कोई गलत बात निकल गई हो। मनहूस हीरा क्या मतलब? ये आप किस मनहूस हीरे का तज़किरा कर रही हैं? हीरे का आपकी ज़िंदगी और परेशानी से क्या वास्ता हो सकता है? हरकुलस ने हैरानी से पूछा। वही हीरा तो असल फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से मैं आज इस हाल को पहुंचती हूँ। मैं इस हीरे से जितना बचना चाहती हूँ इतना ही इसका नाम मेरे मुंह से पर आ जाता है। फिर भी हरकुलस, मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि तुम इस हीरे के मुतल्लिक कुछ ना ही जानो तो अच्छा है। वो हीरा मनहूस ही नहीं, खूनी भी है। जो इसके बारे में जानने की कोशिश करता है वो भी इसकी नहुसत का शिकार हो जाता है और फिर इसके मुकद्दर में तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। मेरी तरह ना ही चैन से वो जिंदा रहता है और ना ही अपनी मर्जी से मर सकता है। जाओ हरकुलस, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। क्यों खामखा तुम अपने मुकद्दर में तबाही लाना चाहते हो? इस शैतानी हीरे के चक्कर में मत पड़ो, इसी में तुम्हारी भलाई है, बूढ़ी औरत ने रोते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखें पुरनम हो रही थीं। हरकुलस चंद लम्हे हैरत ज़दा अंदाज में बूढ़ी औरत का चेहरा तकता रहा, फिर सर हिलाते हुए कहने लगा, बड़ी अम्मा, आपकी बातें बेहद अजीब और पुरइसरार मालूम हो रही हैं। एक तरफ दिल कहता है कि मैं आप जैसी बुजुर्ग खातून की बात मान लूं और आपके हुक्म के तहत यहाँ से वापस चला जाऊं, मगर दूसरी तरफ यही दिल इस बात पर मजबूर कर रहा है कि मैं इस अजीब हीरे के मुतल्लिक ज़रूर जानने की कोशिश करूं। इसे कभी आप खूनी, कभी शैतानी और कभी मनहूस कह रही हैं और आपके कहने के मुताबिक वो हीरा ही आपको इस हाल तक पहुंचाने वाला है। आप मुझे बतलाइए, आपको मेरा इश्तियाक, अब तो मेरा इश्तियाक बढ़ गया है कि मैं इसके मुतल्लिक वो सब बातें सुनूं जो आप जानती हैं। हरकुलस ने ये इश्तियाक अमेज़ नज़रों से बूढ़ी औरत की जानिब देखते हुए कहा। बूढ़ी औरत चंद लम्हे हरकुलस की जानिब गहरी नज़रों से देखती रही, फिर एक गहरा सांस लेती हुई कहने लगी, ठीक है हरकुलस, अगर तुम सब जानने के लिए इस कदर बेताब हो तो मैं तुम्हें इस हीरे के मुतल्लिक ज़रूर बताऊंगी। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें रोकूं, मगर अब तुम ज़िद कर रहे हो तो मैं मजबूर हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें हीरे की और अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊं, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, वादा? कैसा वादा? हरकुलस ने हैरानी से पूछा। इस हीरे की हकीकत जानकर तुम्हें वो हीरा मुझसे लेना होगा और तुम उसे लेने से किसी भी सूरत में इनकार नहीं करोगे। बूढ़ी औरत ने हरकुलस की जानिब बगौर देखते हुए कहा, इस हीरे की कीमत क्या होगी? हरकुलस ने सोचने के से अंदाज में पूछा। इस हीरे की हकीकत ही जान लेना इसकी कीमत होगी। हरकुलस, मेरी बात ध्यान से सुनो। हीरे की असलियत जानकर अगर तुमने हीरा मुझसे ना लिया तो मैं और तुम दोनों जलकर राख हो जाएंगे। इस हीरे पर शैतानी साया है जो किसी भी सूरत में हमें मुआफ नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार फिर तनबीह करूंगी कि हीरे की कहानी मत सुनो। अभी तुम हीरे को देखा नहीं, तुम आसानी से यहाँ से जा सकते हो। अगर एक बार तुम्हारी इस मनहूस हीरे पर नजर पड़ गई तो तुम्हारा यहाँ से जाना नामुमकिन हो जाएगा। सोच लो, मैं तुम्हें सोचने के लिए चंद लम्हे देती हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ भी हो बड़ी माँ, मैं इस अजीब हीरे की असल कहानी जानकर रहूँगा। आपकी बातों ने मेरा इश्तियाक इस कदर बढ़ा दिया है कि अगर मैं इस अजीब और पुरइसरार हीरे के मुतल्लिक जाने बगैर यहाँ से चला गया तो मुझे सख्त खौफ का सामना करना पड़ेगा और मैं सख्त बेचैन रहूँगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हीरे की असल हकीकत जान लेने के बाद इस हीरे को मैं अपने आपसे ले लूँगा, चाहे बाद में इसका मुझे खमियाजा ही क्यों ना भुगतना पड़े। हरकुलस ने सर झुकते हुए जवाब दिया। अब बूढ़ी औरत एक सर्द आह भरकर उठ खड़ी हुई। वो झुंपड़े के एक कोने में पड़े हुए एक संदूक की जानिब बढ़ी और इसका ढकना उठाकर उसे टटोलने लगी। फिर उसने संदूक से
शहजादी हसीना के मुतल्लिक जानना चाहते हो? तुम्हें ये हीरा सब कुछ बता देगी। बूढ़ी औरत ने थैली हरकुलस की जानिब बढ़ाते हुए कहा। हरकुलस ने हैरत से बुढ़िया की जानिब देखते हुए इससे थैली ले ली। थैली वजनी थी। हरकुलस ने इसका मुंह खोलकर इसमें हाथ डाला। जब इसका हाथ थैली से बाहर आया तो इसके हाथ में एक हल्के नीले रंग का बहुत बड़ा हीरा जगमगा रहा था। हीरे में छोटे छोटे सितारे गूंदे हुए महसूस हो रहे थे। हरकुलस हैरत भरी नजरों से इस हीरे की जानिब देख रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा इस कदर चमकदार हीरा देखा। चंद्र में हैरानी से वो हीरे को पलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने बुढ़िया की जानिब देखा। बुढ़िया खामोश और नहायत संजीदा अंदाज में इसकी तरफ देख रही थी। ये हीरा तो बहुत कीमती मालूम होता है। ये आपके पास कहाँ से आया है? हरकुलस ने बुढ़िया से पूछा। इन सब सवालों का जवाब तुम्हें इस हीरे से ही मिलेगा। हरकुलस, तुम हीरे को गौर से देखो और इससे शहजादी हसीना के मुतालिक पूछो। बुढ़िया के लब खुले। हरकुलस ने हैरान होते हुए गौर से इस हीरे को देखना शुरू कर दिया। है हीरे, मैं शहजादी हसीना के मुतालिक जानना चाहता हूँ। वो कौन है? अभी हरकुलस ने इतना ही कहा था कि यकवक्त उसे एक जोरदार झटका लगा। एक लम्हे के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके सारे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मगर दूसरे ही लम्हे अंधेरा इसकी आंखों के आगे से छट गया। हरकुलस ने देखा और फिर दूसरे ही लम्हे पूरी तरह से उछल पड़ा और घबराए हुए अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। उसके चौंकने और हैरान होने की वजह वो झोंपड़ी नहीं थी जिसमें वो अभी चंद समय कबल बुढ़िया के साथ मौजूद था, लेकिन अब ना ही इसके साथ बुढ़िया थी, ना ही वो जंगल था जहाँ हरकुलस हकीकत से अपने साइकिलस के साथ आया था। इसके कदम तले से जमीन में गए थे और इस वक्त आसमान पर बुलंदियों पर बादल मुझे दिखाई दे रहे थे। इसके हाथ में पत्ता वो हीरा जिसे कोई परिंदा इस बात का एहसास जरूर हो रहा था कि किसी नजर न आने वाली हस्ती ने उसे पकड़ रखा हो और वो उसे फिजा में उड़ा कर ले जा रही हो। साथ ही हरकुलस ये महसूस कर रहा था कि जैसे इसका जिस्म ठोस पत्थर बन गया हो। वो अपनी मर्जी से हरकत कर सकता था और ना ही नजरें घुमा सकता था। इसके होंठ भी एक दूसरे के साथ चिपक गए थे, जिसकी वजह से वो मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता था। ना जाने क्यों हरकुलस दिल ही दिल में खुद को इस अजीबोगरीब मुसीबत में मुब्तला पाकर डर गया। इस लम्हे अचानक हरकुलस को यूं महसूस हुआ जैसे इसके कानों में उस बुढ़िया की आवाज सुनाई दे रही हो। इस तरह गौर किया, वाकई बुढ़िया उससे मुखातिब थी। हरकुलस, अपनी आंखें बंद रखो। अभी चंद ही लम्हों बाद तुम मेरी जिंदगी में दाखिल होने वाले हो। जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें हरगिज मत खोलना। बूढ़ी औरत इससे चीख चीख कर कह रही थी और हरकुलस ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा के तेज थप्पड़ इसके जिस्म से टकरा रहे थे। वो काफी देर तक यूं ही खुद को उड़ता हुआ महसूस करता रहा। फिर अचानक उसने महसूस किया जैसे उसके कदम जमीन के साथ टकराए हों। हरकुलस, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। इस लम्हे बुढ़िया की आवाज बुलंद हुई। कानों में उसने बुढ़िया की आवाज आते हुए सुनी। उसने यूं ही आंखें खोली। उसकी नजर एक निहायत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। तो इसके साथ ही नाजरीन, इस एपिसोड का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। आगे आने वाली एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हरकुलस के साथ क्या होता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली आने वाली एपिसोड आप तक पहुंच सके।